بھر میں کورونا ایک روز میں 88 زندگیاں لے گیا. اموات کی تعداد 1483 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں 3000 سے زیادہ مریض سامنے آ گئے. اب تک 69,496 افراد میں وائرس کی تصدیق. معاون خصوصی ظفر مرزا کہتے ہیں مقامی سطح پر وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہوا. ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے یا لاک ڈاؤن دوبارہ سخت کر دیا جائے. وزیر اعظم عمران خان نے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس. لاک ڈاؤن SOPs پر عمل درآمد کے لیے مارکیٹ ایسوسی ایشن سے مدد لینے کا فیصلہ. دکانداروں کو نو ماسک نو سروس پالیسی پر سختی سے عمل کرنے اور خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی تجویز. خبردار ہوشیار، اسلام آباد میں ماسک نہ پہنا تو 3000 روپے جرمانہ لگے گا. جیل بھی پہنچایا جا سکتا ہے. مارکیٹ، مساجد، پبلک ٹرانسپورٹ، لاری اڈوں، گلیوں، سڑکوں، دفاتر میں چیکنگ ہوگی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے حکم جاری کر دیا. گلگت میں دیگر اضلاع سے لوگوں کی آمد پر پابندی عائد. تمام سیاحوں کا داخلہ مکمل طور پر بند. ڈپٹی کمشنر کی عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل. جہاں ہوگی وہاں مرے گا، لیکن کوئی بھوک سے مر جائے بندہ تو یہ بہت غلط بات ہے. کاروبار کھلنا چاہیے، مگر اگر صحت کے حوالے سے اگر ہے تو پھر سختی ہونی چاہیے. پریشانی ہو رہی ہے. اب آفس سے نکلے بائک کے اندر پیٹرول نہیں ہے، پیٹرول پمپ بند ہو جاتا ہے. لاک ڈاؤن تو وہ لوگ اگر کرتے بھی ہیں تو اس میں نرمی ضرور ہونی چاہیے. لاک ڈاؤن میں سختی نہیں ہونی چاہیے. SOPs میں عمل کرنا چاہیے. کوئٹہ شہر میں 14 دن کے لیے کافی سختی کرنا چاہیے کیونکہ بیماری کافی زیادہ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کافی لوگوں میں خوف پھیل رہا ہے. عمران خان کو چاہیے کہ وہ غریب لوگوں کو ریلیف دے. صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک جو بازار کو کھولا جائے. پرزور ریکویسٹ کروں گا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، مزید ٹائم بڑھایا جائے. لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے یا مزید سخت کر دیا جائے. کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے شہریوں کا ملا جلا رد عمل. SOPs اور سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل درآمد پر سب کا اتفاق، لیکن کاروبار کے اوقات کار پر آرا تقسیم. کچھ علاقوں میں شہریوں نے 14 روزہ مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی. پشاور میں پولیس سروسز اسپتال کے پیتھولوجسٹ ڈاکٹر اورنگزیب کورونا وائرس سے انتقال کر گئے. فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں کے مزید 4 ڈاکٹرز وائرس میں مبتلا. مختلف اسپتالوں میں متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 55 اور کورونا سے متاثرہ طبی عملے کی تعداد 87 ہو گئی. شیخوپورہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں مزید 5 ڈاکٹرز کورونا میں مبتلا. اسپتال MS ڈاکٹر محمد اظہر کا کہنا ہے کہ آئسولیشن وارڈ میں کورونا کے مزید مریض رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کے حکومت پر وار. کہا کہ اب شہزاد اکبر بھی مان گئے کہ عمران خان نے چینی کی برآمد کی اجازت دی. اصل ایشو یہ ہے کہ کس نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. عام آدمی کی جیب پر 300 ارب کا ڈاکہ کس نے ڈالا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام جان چکے چینی چور مافیا، عمران مافیا ملک پر مسلط ہے. روز لاپتہ اور کرائے کے ترجمان سرکس کرتے ہیں. انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 کی قانون سازی مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی تھی. عمران صاحب نے رپورٹ اسی ایکٹ کے تحت پبلک کی ہے. مریم اورنگزیب صبح دوپہر شام کمیشن کی رپورٹ پر رونا رو رہی ہیں. ان سب کو اپنے گرد احتساب کا پھندا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم کے معاملے خصوصی شہباز گل کا احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے بیانات کا رد عمل. کہا یہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے یہ پکڑے گئے ہیں. وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ احسن اقبال سزا یافتہ مجرم کو قائد مانتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں. جعلی دانشور جعلی بیانیے تراشنے کی بجائے اپنی چوری کا حساب دیں. چینی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد نیب نے اسد عمر، حفیظ شیخ، رزاق داؤد، عثمان بزدار اور وزیر اعظم کو گرفتار کیوں نہیں کیا. سندھ حکومت نے سوال اٹھا دیے. وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ نیب کو پہلے PTI کے ان وزیروں کو گرفتار کرنا چاہیے جنہوں نے عوام کے 300 ارب روپے اپنی جیبوں میں ڈالے. اب یہ کہتے ہیں فورنزک کے بعد کارروائی کریں گے. کیا آصف زرداری، فریال تالپور اور خورشید شاہ کی گرفتاری کے وقت بھی فورنزک رپورٹ کا انتظار کیا گیا تھا؟
यूनिट से खिलाफ सिंध असेंबली। फिरदौस शमीम नकवी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सिंध के लिए खुसूसी शुगर इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा सिंध में कुल 38 शुगर मिल्स में से 18 जरदारी और उंगली ग्रुप की हैं। सिंध में फरोख्त होने वाली शुगर का खरीदार एक ही है। वज़ीर आला सिंध के दबाव पर कई शुगर मिल्स मालिकान ने शुगर मिल्स फरोख्त की। अब तक किसानों को गन्ने की अदायगियां भी नहीं की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीनी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों स्याह फार्म शख्स के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मिनीसोटा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क समेत मुख्तलिफ रियासतों में मुजाहिरे, हंगामा आराई, जलाओ घेराव और पुलिस पर हमले। एक एहलकार हलाक, कई जख्मी। 10 से ज्यादा रियासतों में फौज तलब, 25 शहरों में कर्फ्यू। मुजाहिरीन की ट्रंप की रिहाइश का व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। सदर ट्रंप ने कहा कि मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें खूंखार कुत्तों और जदीद हथियारों से लैस एहलकारों का सामना करना होगा। सड़कों पर जो कुछ हो रहा है उसका इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। लाकानूनियत और तशद्दुद को रोका जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन इंसदाद कोरोना नहीं करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। कोरोना के मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। ये वक्त सियासत छोड़कर दुखी इंसानियत के साथ खड़े होने का है। मुश्किल वक्त में लंदन की सैर करने वालों को कौम जान चुकी है। ऑपोजिशन की हसरतें न पहले पूरी हुई न आइंदा होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने टिड्डी दल के हमले में मुमकिन इजाफे के खदशे के पेश नजर पेशगी इंतजामात की हिदायत कर दी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि इस साल कोई स्पेशल इम्तहान नहीं होगा। जो बच्चे फेल हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। निजी स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी, स्कूल खुले तो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शरफुज़्ज़मान ने 15 जून से कराची से कश्मीर तक तमाम स्कूल खोलने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र की बेहुरमती काबिल मजम्मत है। कब्र की बेहुरमती किसी भी मजहब में जायज नहीं। वो इसी वाक़े का नोटिस ले और कार्रवाई करे। मदारिस के तलबा से मुताल्लिक़ अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि मदारिस को अपने तलबा से इम्तिहान लेने और दाखिलों की इजाज़त दी जाए। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के तालीमी साल का हर्ज हो रहा है। तमाम मदारिस की तंजीमें कोरोना के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल की अहलियत रखती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम-ए-इंहदाम जन्नतुल बकी के हवाले और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मज़ार की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक निफ़ाज़ फ़िक्र जाफरिया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर तंजीमों के तहत मुजाहिरे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सखर, लाड़काना, मुल्तान और पारा चनार में रैलियां। शिरका का सहाबा कराम और अहले बैत के मज़ारात को दोबारा तामीर करने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के बागात और फसलों में टिड्डियों के हमले कम न हुए। किसान परेशान, कहीं स्प्रे तो कहीं ढोल बजाकर फसलें बचाने की कोशिशें। NDMA का मुख्तलिफ मकामात पर टिड्डियों को भगाने के लिए स्प्रे। इदारे के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 52 अजला में टिड्डियां मौजूद हैं। मुल्क भर में 1102 टीम्स लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं।
पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया ने टिड्डी दल की कुदरती आफत का मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया। नफरत का प्रचार करने वाले भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने टिड्डियों की अलगार को पाकिस्तान की साजिश करार दे दिया। भारतीय मेजबान की इस हरकत पर खुद भारतीयों ने अर्नब गोस्वामी को आड़े हाथों लिया। कहा, कितनी शर्म की बात है, भारतीय सहाफत का मयार ये हो गया। किसी ने तस्वीर में टिड्डियों को भी मुसल्ला कर दिया। एक ने सवाल किया कि गोस्वामी जी ये तो बताएं कि पाकिस्तान ने टिड्डियों को हमले के लिए राजी कैसे किया। कराची में PIA के तैयारे के हादसे की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम ने एयरपोर्ट पर रनवे, कंट्रोल और अप्रोच टावर का फजाई मुआयना किया। हादसे के मकाम पर इमारत की छत पर फंसे इंजन को निकालने की कोशिशें जारी। मुतासरा इमारत की छत से इंजन की मुंतकली तामीराती माहिरीन की जेर निगरानी होगी। हादसे में जाँ बहक 97 में से 74 अफराद की शनाख्त हो गई। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट आने के बाद मुर्सा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ जिसे दोबारा लिया जाएगा। दुबई में मुतादिद पाकिस्तानी रिहाइश और खुराक से महरूम, वतन वापसी का इंतजाम न हो सका। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी कांसुल खाने मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक खुसूसी परवाजों की तादाद कम होने की वजह से मुसाफिरों को बतदरीज भिजवाया जा रहा है। पेशावर में बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए जमात इस्लामी का मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने टेलीफोनिक खिताब में कहा कि सिफारत खानों का किरदार न होने के बराबर है। सिफारत खानों में फाल टेस्ट के कयाम को यकीनी बनाया जाए। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात, खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद की जान ले गए। खानेवाल में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए मुसाफिर बस उलट गई। 6 मुसाफिर जाँ बहक हुए। शेखुपुरा में बारातियों की वैन को हादसा, 3 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक। नोशकी में पिकअप और कार में तसादुम 5 जिंदगियां ले गया। मुजफ्फरगढ़ में 3 माह की बच्ची का कातिल उसका अपना बाप निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ पे जुर्म कर लिया। मुलजिम ने अपने वालिद से जायदाद के झगड़े पर 19 मई को बच्ची को कत्ल करके मुकदमा अपने वालिद के खिलाफ दर्ज कराया था। डेरा इस्माइल खान में कुएं सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में लगड़बग्गे की मौजूदगी का इंकशाफ। मकामी कबाइल ने लगड़बग्गे को पकड़ा। महकमा जंगली हयात ने जख्मी लगड़बग्गे को पेशावर मुंतकिल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कराची और लाहौर में हल्की बारिश, अस्तोर और आजाद कश्मीर में भी बरखा रुत ने मौसम खुशगवार कर दिया। अस्तोर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में गर्मी के भी थपेड़े। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, नवाबशाह और दादू में 47, तुर्बत 46, हैदराबाद 43 और कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दर्जा हरारत 32, श्रीनगर 22 और लेह में 11 डिग्री रिकॉर्ड। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 2.5 माह बाद मस्जिद नबवी नमाजियों के लिए खोल दी गई। मजमूई गुंजाइश के 40% नमाजियों ने एहतियाती तदाबीर के साथ नमाजों की अदायगी की। नमाजियों को एक दूसरे से फासला रखने, जाए नमाज साथ लाने और वुजू घर से करके आने की हिदायत की गई। रोज़ा शरीफ ज़ायरीन के लिए ताक़ुब-ए-सानी बंद रहेगा। सऊदी अरब के दीगर शहरों की मस्जिदों में भी नमाज की बाजमात अदायगी जारी। मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अक़सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। कोरोना वायरस
وائرس दुनिया भर में 3,71,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मरीजों की तादाद 18 लाख से ऊपर, अमवात 1,05,000 से ज्यादा हो गई। ब्राजील 5 लाख मरीजों के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। बरतानिया का पीर से शायकीन के बगैर खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। 1,83,000 मरीजों के साथ भारत दुनिया में 9वें नंबर पर आ गया। वायरस से दुनिया भर में 61,85,000 अफराद मुतासिर, 27,50,000 से ज्यादा सेहतियाब। फाम अमरीकी के कत्ल पर मुजाहरों का सिलसिला बरतानिया पहुंच गया। अमरीकी मुजाहिरीन से यकजहती के लिए लंदन की सड़कों पर मार्च, नस्ली तासुब के खिलाफ नारे। कल से बरतानिया के बड़े शहरों में भी मुजाहरों की तैयारी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप में शकील रहमान 79 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक रुकन गवर्निंग बोर्ड और एडवाइजर डोमेस्टिक शकील शेख से अखराजात की तफसीलात मालूम करने के लिए उन्हें नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में 1,40,00,000 रुपए फंड्स की मद में वसूल किए जाने पर सवालात उठाए गए। शकील शेख से दुबई के दौरों और उनके अखराजात और दीगर मीटिंग्स और उन पर आने वाले अखराजात और उसके आउटकम के बारे में भी पूछा गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से पुरजोर अपील करता हूँ और मुतालबा करता हूँ जो भी चीनी आटा चोरी में मुलव्वस है उन लोगों को सजा दी जाए। गवर्नमेंट सबसे पहले तमाम फैक्ट्रीज को अपनी तहवील में करे, शुगर फैक्ट्रीज को, और उनका एहतसाब करे, एक मुकम्मल और जामे एहतसाब। और जो लोग भी इसका में मुर्तकिब हैं या जो इसके जिन्होंने इर्तिकाब किया इस जुर्म का, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। मेरी ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस काम में मुलव्वस है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो भी ये काम करे उनको पता हो कि इसका क्या अंजाम होगा। हम जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुतालबा करते हैं चीनी और आटा चोरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन्हें कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि नेक्स्ट दफ़ा कोई भी बंदा करप्शन का सोचे भी ना। और खान साहब गरीबों को आपसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन पे पूरा हाथ डालेंगे, उनको सजा देंगे, और हम बस यही चाहते हैं कि इन लोगों को, इन चीनी चोरों को सजा मिलनी चाहिए और सरेआम मिलनी चाहिए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़। तंबाकू नोशी की आदत, बीमारियों को दावत। सिगरेट नोशी, तंबाकू वाला पान, गुटखा खाने में सिर्फ नुकसान। दुनिया भर में आज इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। अदाकार शहरोज सब्ज़कारी और मारूफ मॉडल और अदाकारा सदफ कमल का कराची में निकाह। शहरोज सब्ज़कारी की ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी 7 साल रही। कोई दिलदार नहीं थे, कुछ नहीं दिल नू सांभ सांभ की रखना, तन मेरे मखना कतल जुलेना दिल थे या टूटी चढ़िए बेद प्यार का फुले को पुछ हारियां अखियां दिल तू होसी कदू दीदार। और
और कई बरसों तक बॉलीवुड पर राज करने वाले गुलकार, अदाकार, सदाकार, फिल्म स्टार, स्क्रिप्ट राइटर और कॉलम निगार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए।